Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. So friends, I welcome you all for the SY Basic Chemistry Paper 3 Unit 2 Classical Method of Analysis. So friends, in yesterday's lecture we have seen about the various effect of particular things on precipitation. So we have discussed about common ion effect, diverse ion effect, effect of temperature, effect of pH and effect of solvent. So how these factor affect the precipitation, and we all know that when we require precipitate, that means solubility should be minimum, solubility should be negligible, so that we should get or we will get maximum amount of precipitate. So we have also seen that precipitate is of three types: crystalline precipitate, curdy precipitate, okay, and gelatinous precipitate. So among these three, the crystalline precipitate is of very high quality and it has very nice type of particle size. So it is very important for us that during the precipitation process we should maintain the condition in such a way that we should get proper type of precipitate, which should be crystalline type. So today we will discuss about that, how we can control the particle size. Okay, so to control the particle size we should understand the process of nucleation. Okay, so what is the meaning of nucleation? See, nucleation is the initial process that occur in the formation of a crystal from a solution, a liquid or a vapor, in which a small number of ions, atoms or molecules become arranged in a pattern characteristic of a crystalline solid. So what is the basic meaning of this? That actually when you want a proper type of particle in your precipitate, it is very important to maintain the purity and ease of precipitation process. Okay, so if you do it in a correct form and if you use correct chemicals in a correct manner, then only you will get the precipitate which is of proper size. Okay, मीन्स व्हाट, हमें अगर अच्छा टाइप का प्रेसिपिटेट चाहिए तो हमारे केमिकल्स भी प्रॉपर होने चाहिए, दे शुड बी इन प्योरेस्ट फॉर्म एंड ऑल्सो वट एवर अमाउंट इज़ गिवन. जैसे आप लोग कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो उसमें जैसे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट आर रिक्वायर्ड, सिमिलरली फॉर प्रॉपर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन you should have the chemicals in purest form, similarly in proper amount and proper proportion. Okay, so in gravimetric analysis, when the ionic product exceeds the solubility product, we get the precipitate, and therefore also the particle size is very important, and during the formation of precipitate the size of particle also changes. Initially the particles are in very small size. Okay, initially they are of very small size, but slowly they will have layer on one on each other. धीरे धीरे एक पार्टिकल के ऊपर दूसरे आयन्स या फिर पार्टिकल्स का लेयर बनता जाएगा. प्रोबेबली इट इज़ ऑफ आयन ओनली. फिर पॉजिटिव आयन के ऊपर नेगेटिव आयन का लेयर, ऐसे वन बाय वन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लेयर एंड द पार्टिकल ऑफ that particular component will increase. Means initially only one particle और उसके ऊपर आयन के लेयर बनने से उसकी पार्टिकल साइज बढ़ती जाएगी. दिस वे ऑल टाइप ऑफ precipitate particles are formed. Okay, so it is very important that we should discuss how these type of particles are actually formed. Okay, so the particle size are actually depending upon two things. One is called as nucleation process and second one is called as growth of that nucleus. Okay, तो मतलब पहले न्यूक्लिएशन होगा और उसके बाद उसकी ग्रोथ कैसे होती है, इट विल गिव द एक्चुअल पार्टिकल साइज. So therefore in case of nucleation, what will happen, the rate of nucleation, if it is small compared to crystal growth, fewer nuclei are formed and then they will join to each other to form large particles. तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि इनिशियली देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल. ओके, ओनली अ क्रिस्टल इज़ फॉर्म, इट कैन बी ऑफ लिक्विड और वेपर, इन विच देर आर स्मॉल नंबर ऑफ आयन्स. वो जो क्रिस्टल है उसके अंदर क्या होगा,
इफ़ इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑब्वियसली उसके अंदर आयन्स होंगे, या फिर देयर कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मैनर। हमें अच्छी तरह से पता है कि क्रिस्टल जो होता है इट हैज़ अ पर्टिकुलर शेप, राइट, एंड देयरफॉर in crystalline solid or in a crystal there is proper arrangement of atom, ions or molecule, and therefore after formation of a crystal they form a site upon which additional particle are deposited as a crystal growth। एक क्रिस्टल बनने के बाद उसके ऊपर क्रिस्टल के लेयर बनते जाते। Okay, that process is called as nucleation. Means what? Initially it is very important that a small amount of particle is formed। लेकिन हम लोग particle भी किसको बोलते हैं? जो smallest कुछ भी है उसे हम particle नहीं बोलते। जो smallest चीज़ है, सबसे smallest part of a particle is called as nucleus, है ना। जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, आयन, एटम, और एटम के अंदर भी हम लोगों को पता चला कि देयर इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सो सिमिलरली whenever there is a particle, very first there is formation of a crystal। पहले उसका एक क्रिस्टल बनेगा, वो क्रिस्टल के अंदर भी क्या होंगे, उसके आयन्स, ओके, और स्लोली देयर विल बी ग्रोथ ऑफ दैट क्रिस्टल। एक के ऊपर एक दूसरे आयन्स पॉजिटिवली निगेटिवली दे विल फॉर्म लेयर एंड आफ्टर फाइनल कंप्लीशन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिकल। मतलब क्रिस्टलाइन ग्रोथ होगा और फाइनली पार्टिकल बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें और क्या होता है, देयर इज़ ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर एंड फाइनली देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ आयन। ओके, सो स्लोली दिस विल इंक्रीज द पार्टिकल साइज। तो इसमें जो सबसे छोटी साइज़ हमें मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल साइज। एंड वंस द क्रिटिकल साइज इज अटेन देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयन क्लस्टर। एक बार वो जो रिक्वायर्ड साइज़ है क्रिस्टल की वो बन जाए तो फिर उसके ऊपर देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ आयन्स एंड स्लोली क्लस्टर इज़ फॉर्म। ओके, सो below that critical size it is difficult to separate that ion from its solution। okay, so slowly there is formation of crystal। तो ये जो प्रोसेस है कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिएशन इज ऑफ टू टाइप। it is of heterogeneous process or it can be of homogeneous process। okay, so in case of heterogeneous process what happens, in this process the nuclei originate by clustering of ion around very fine suspended matter like dust particle। मतलब एक सिंपल थिंग है कि अगर आप जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आप प्रेसिपिटेट बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करोगे। लेकिन ये जो न्यूक्लिएशन की प्रोसेस है, क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर शुरू होती है, एनी डस्ट पार्टिकल, उसके अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, मानो डस्ट प्रेजेंट है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट है उसके क्लस्टर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डस्ट पार्टिकल इज अ heterogeneous particle, therefore this process is called as heterogeneous process। so in this process the formation of crystal or formation of cluster of crystal starts on a foreign particle like dust। तो डस्ट के एक छोटे से पार्टिकल के ऊपर हमारा क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू होता है एंड स्लोली देयर विल बी इंक्रीज इन साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज heterogeneous process। This type of nucleation is commonly found in solution where there is very low degree of supersaturation। मतलब कुछ solution ऐसे होते हैं जो जल्दी सुपर सैचुरेट नहीं होते, है ना, कितना भी अमाउंट आप उसमें डालते जाओ स्टिल दे विल रिक्वायर सॉल्यूट, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि इन वाटर यू आर एडिंग सॉल्ट, सो वन स्टेज विल कम वेयर you cannot dissolve much more salt in water, लेकिन there are some substance which have very high solubility, तो आप उसको कितना भी ऐड करो वो डिज़ोल्व होता ही जाएगा एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसी केस में प्रेसिपिटेट बनना मुश्किल है ना, बिकॉज फॉर प्रेसिपिटेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट इज more than solubility product
then only precipitate will form. Means saturated or we can say super saturated solution is very important. तभी उसमें क्रिस्टल बनना शुरू होगा. किसका क्रिस्टल? प्रेसिपिटेट का क्रिस्टल, है ना. लेकिन अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होता है तो जल्दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा. इन दैट केस प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट ऑन अ फॉरेन पार्टिकल, can be a dust particle, and therefore this type of nucleation process is called as heterogeneous process. Okay, the second one is called as homogeneous process. तो अभी ये तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि in homogeneous process the nuclei originated by clustering of ion by themselves and arranging in a definite pattern. तो अभी ये जो होमोजीनियस प्रोसेस है इसके नाम से ही पता चलता है देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डस्ट पार्टिकल और एनी फॉरेन पार्टिकल. आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी आयन है उसी का कॉम्बिनेशन बन के क्या बनेगा? आपका पहला क्रिस्टल बनेगा. किस चीज़ का क्रिस्टल? हमारे प्रेसिपिटेट का क्रिस्टल. ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी वांट प्रेसिपिटेट ना. वी आर स्टडिंग प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री. तो ये ग्रेविमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज क्या है? प्रेसिपिटेशन. तो हम लोग कब से वही सीख रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ना. वो फैक्टर कैसे कंट्रोल करने हैं वो हमने देखा. तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ये प्रेसिपिटेट कैसे बनता है ना, इन अ सॉल्यूशन. तो पहला टाइप था हेट्रोजेनियस और अभी दूसरा टाइप क्या है? होमोजेनियस. तो होमोजेनियस में किसी फॉरेन चीज़ की ज़रूरत नहीं. वॉट एवर योर सोल्यूशन इज़ देयर इन दैट the ion themselves get arranged in such a way that they form a particular pattern. पॉजिटिव और निगेटिव आयन बन के एक क्रिस्टल बन जाएगा एंड स्लोली ऑन दैट क्रिस्टल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लेयर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एंड फाइनली देयर विल बी क्रिस्टल ग्रोथ. वो जो एक क्रिस्टल बना वो अपनी साइज धीरे धीरे बढ़ाएगा. सो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लिएशन इज कॉमनली फाउंड इन अ सोल्यूशन where there is high degree of super saturation, है ना. तो जैसे पहले में क्या था कि वो जो सॉल्यूट था बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा था तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा. लेकिन ये जो होमोजेनियस टाइप ऑफ प्रोसेस है उसमें क्या हो जाता है? ऐसे सॉल्यूट यू आर यूजिंग विच आर फॉर्मिंग इजीली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बहुत जल्दी सैचुरेशन स्टेज आ जाती है. जैसे कि अभी आप लेक्चर सुन रहे हो, कुछ बच्चे 10-15 मिनट तक आराम से सुनते, या फिर कुछ बच्चे 20 मिनट्स तक सुनते. मीन्स देयर सैचुरेशन स्टेट जल्दी नहीं आती. लेकिन आप में से कुछ होंगे जिनको 5-10 मिनट में ही बोर होता है ना. दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड स्टेज, बहुत जल्दी फुल हो जाना. सो सिमिलरली सम टाइप ऑफ आयंस और सम टाइप ऑफ सोल्यूशन they will easily form saturated state. Now there is not possibility to dissolve much more solute in that solvent, that is called as saturated stage. तो ऐसे type of solution में homogeneous process is possible. In that there is no need of any foreign material or dust particle. वो जो अपना solution है उसी का positive negative ion एक साथ आके crystal बनाएगा and there will be formation of a crystal and crystal growth. So there are these two type of process of nucleation. तो एक बार ये न्यूक्लियस बन जाए, क्रिस्टल बन जाए, फिर धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ेगा और ये साइज़ कैसे बढ़ेगा? देन इट विल कन्वर्ट इनटू अवर रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रेविमेट्री. नाउ दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर एक्चुअली इन अ कोलाइडल स्टेट. ओके, तो हमारे जो पार्टिकल बन रहे हैं प्रेसिपिटेट के, ये कैसे बनते हैं? दे आर इन अ कोलाइडल स्टेट. ओके, सो द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस एक्चुअली ऑकर इन 3 स्टेजेस. ये जो हमारी प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है 3 स्टेज में बनती है. कैसे? कोलिजन ऑफ आयन इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू यील्ड प्राइमरी न्यूक्लियाई. तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या होगा, पहले एक क्रिस्टल बनेगा and slowly there will be formation of secondary layer. Okay, then what will happen? पहले जो पार्टिकल बना उसके ऊपर जो लेयर बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी लेयर, और प्राइमरी लेयर के ऊपर दूसरे लेयर बनेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी लेयर, एंड फाइनली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिकल.
तो ये जो पार्टिकल है एक्चुअली इट इज़ इन अ कोलाइडल स्टेट। तो इसीलिए हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड नो व्हाट इज़ कोलाइडल स्टेट ऑफ particle. Okay, so what is colloidal state? A colloid is a two phase system in which one of the phase is dispersed as a discrete particle and in a second continuous phase. मतलब क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता है कि कुछ तो सॉल्यूशन है, एक फेज है, उसके अंदर बनी हुई दूसरी फेज विच इज़ इन अ डिस्पर्स फॉर्म, है ना। इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट देम ईजीली, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डिजॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो कोलॉइडल पार्टिकल हम किसे कहेंगे? देखो, कोलॉइडल स्टेट इज़ द बिफोर स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रेसिपिटेट। तो कोलॉइडल पार्टिकल कैसा होता है? दे आर इन अ सच अ वे दैट वन टाइप ऑफ फेज क्या होती है? इट कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो इट इज़ वन काइंड ऑफ फेज डिस्पर्स इन अ सेकंड कंटिन्यूअस फेज। जो सॉल्यूशन है आपका, है ना, जो सॉल्वेंट है, दैट इज़ योर सेकंड फेज एंड दैट इज़ कंटिन्यूअस फेज, क्योंकि वो ज़्यादा है ना, जैसे वाटर होगा, अल्कोहल होगा या फिर HCl है जिसमें आपने सॉल्यूशन बनाया है ना, तो दैट इज़ योर सेकंड फेज एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस फेज। और उसके अंदर जब आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करते हो तो धीरे धीरे पार्टिकल बनना शुरू होता है। सो दैट इज़ योर कोलाइडल स्टेट। मतलब वो कैसी है? इट रिमेन डिस्पर्स इन योर सेकंड फेज, है ना। आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप कोई कलर या फिर पोटेशियम पैरामैग्नेट ऐड करते हो वाटर में, तो कैसे कलर दिखने लगता है ना। पार्टिकल कंप्लीट डिजॉल्व भी नहीं होते, लेकिन दे आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ऑल्सो। सो इट इज़ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल स्टेट। ओके, सो कोलॉइडल स्टेट, उसकी क्या खासियत है? कोलॉइडल पार्टिकल हैज़ साइज इन रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। Okay, so it is very particular size that these particles are in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer. अगर हम लोग सस्पेंडेड टाइप ऑफ पार्टिकल की बात करें तो उनकी साइज़ है लार्जर दैन 100 नैनोमीटर। एंड ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो पार्टिकल डिज़ोल्व हो चुके हैं, है ना, तो उनकी साइज़ क्या है? इट इज़ लेस दैन 1 नैनोमीटर। तो जो सॉल्यूशन बनता है विच इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व, अगर सॉल्यूट आपका कंप्लीट डिज़ोल्व हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। तो उसमें जो पार्टिकल है उनकी साइज़ होती है लेस दैन 1 नैनोमीटर। अगर उससे बड़े पार्टिकल्स है, दे आर इन सस्पेंशन टाइप, तो देयर साइज इज़ लार्जर दैन 100 नैनोमीटर। और उससे भी जब पार्टिकल बड़े हो जाते हैं देन दे विल फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल्स और योर प्रेसिपिटेट टाइप ऑफ पार्टिकल एंड देयर साइज इज़ अप टू 1000 नैनोमीटर, सबसे बड़ी साइज़ होती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर एक्चुअली स्मॉल इज साइज, देन उनकी साइज़ छोटी होती है एंड दे हैव वेरी गुड टाइप ऑफ सरफेस अट्रैक्शन विथ ईच अदर। उनका जो अट्रैक्शन है अपने सॉल्यूशन की तरफ वो भी अच्छा होता है। सो ये फिनोमेना होती है बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन टाइप ऑफ प्रोसेस। ओके, अभी व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल? ये जो तुम्हारी प्रेसिपिटेट के पार्टिकल बन रहे हैं ना, तो उनका प्रॉपर्टी क्या है? ओके, सो दे आर हिट्रोजेनियस मिक्सचर। अभी मैंने जैसे कहा कि अगर होमोजीनियस होता तो वो पूरी तरह आपके सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं देख सकते, है ना। कैन यू सी द सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर? नो, so that is true solution. But in case of colloidal particle we can see them with our naked eyes, right? So therefore they are in heterogeneous type of mixture form. Then second, the size of particle of colloidal is too small to be seen by naked eyes. It is the first stage of your precipitate बनने के पहले की stage है, therefore it is not possible for us to easily see this particle with our naked eyes. They scatter the light passing through them making its path visible. अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोलाइडल पार्टिकल है उसमें आप लोग लाइट पास करते हो तो वो लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मीन्स दे विल स्कैटर द लाइट। ओके, दे शो द ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट मतलब क्या? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं
जो इजीली यहाँ वहाँ हवा में उड़ सकते हैं, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट. सो दे शो द ब्राउनियन मूवमेंट. Then they show Tyndall effect, means they can change the color passing through them. एक कोन बनता है, that is called as Tyndall effect. So colloidal particle can also show the Tyndall effect, and mostly they all are charged particle. So जो colloidal particles होते हैं वो कैसे होते हैं? They are charged particles. So these are all properties of colloidal particle. तो शुरू में क्या होता है? There is formation of colloidal particles, and then there is formation of your actual precipitate. So it is very important that first there should be formation of your colloidal particles. So how they are formed? See here, we can see with this picture, ये जो अंदर एक दिख रहा है, that is actual formation of crystal, we can say, है ना. It is a smallest particle. उसके ऊपर निगेटिव आयन का लेयर बन रहा है. मतलब कोई भी एक पार्टिकल होगा, उसके ऊपर पहले एक लेयर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी लेयर. प्राइमरी लेयर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर निगेटिव आयन का लेयर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लेयर. फिर निगेटिव के ऊपर और पॉजिटिव, फिर उसके पास और निगेटिव. सो दिस वे देर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल. ओके, तो ये जो प्लस है तो दैट कैन बी Ag प्लस. उसके बाहर जो निगेटिव सर्कल दिख रहा है दैट कैन बी Cl माइनस. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ AgCl, राइट. उसके ऊपर अगर आप कोई और सॉल्यूशन डाल रहे हो तो फिर से Ag. फिर अगर सिल्वर नाइट्रेट है तो निगेटिव आयंस अगेन नाइट्रेट. सो दिस वे देर इज फॉर्मेशन ऑफ आयन, उसके ऊपर को आयंस एंड देन काउंटर आयंस. इस तरीके से देर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल. ओके, सो दिस वे जो छोटा सा पार्टिकल है उसकी साइज बढ़ती जाती है, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ बिग पार्टिकल ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि प्रेसिपिटेट क्या है, वो कैसे बनती है और कैसे कैसे फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं. ओके, सो इन नेक्स्ट चैप्टर और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ये प्रेसिपिटेशन के ड्यूरिंग कौन कौन सी इम्प्योरिटी आ सकती है. ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट यू टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू.